session, we will be muting all the participants. Whatever doubts, your queries you'll have related to the kriyas or your health issues, you can please type it in the chat box. Okay? And Swamiji will be taking as much as many as possible the questions, whatever is possible, in the stipulated time of 60 to 90 minutes. Okay? So you can always put your doubts, your queries in the chat box, and Swamiji will be taking those questions one by one. In the meanwhile, by the time Swamiji joins, I would like to just check on with you whether everybody's practicing the kriyas daily or no. Preeti ma'am, Lakshmi ma'am, Meenakshi ma'am, I hope you all are practicing. If not, please start with the practicing regularly, which is really, really very, very important, because we don't suggest any medicine over here, especially the allopathic medicine. We don't have any allopathic pills, magic pills, that is going to work upon your body as a magic. But yes, definitely the Kumbha Kriyas will definitely work. Maybe it might take some time, on since each and everyone's body is different and it differs. अलग अलग वक्त लग सकता है हर एक के बॉडीज को क्रियास को रिस्पॉन्ड करने के लिए. So that is the reason some might start benefiting immediately, right from the second or third week, or some might start benefiting fifth or sixth week, or even more than that. But definitely, let me assure you that these kriyas will definitely benefit you, especially the Kumbha. So please keep on practicing regularly, and I hope everybody's got the access to the recordings of your respective groups, of your batches, especially the practice sessions as well as the main sessions. Swamiji ke recordings. Can I have a thumbs up from everybody? Whether you are receiving it or no. Very less thumbs up, very few thumbs up. That means you all have not installed the app, either the Zenler app or the Avisa app. Good, Saurabh sir. Trupti ma'am, yes, great. Anita ma'am, Surinder sir, Arun sir, especially you. Of course, you have, I know you've downloaded the app. Yes, but I hope the rest of them also have downloaded the app and are able to watch the recordings. So please go through the recordings as and when you get the time, so that you get a better clarity of the recordings as well as the kriyas that are taught during the sessions, in case if you have missed the sessions due to any reasons. So it's an earnest request from the entire Avisa team. Please practice your Kumbhaks regularly and on a daily basis. Okay. So I think let's check if Swamiji has joined. Just give me a sec, please. Yes, Swamiji has joined. I'll just spotlight him. Namaste, Swamiji. स्वामी आप म्यूट पर हो. No, we can't hear you. I've spotlighted you. Just a moment. Yes. I was not able to unmute myself. Okay, yeah. So there are questions. We can take questions. Yeah. Just a moment. Lakshmi Mishra ma'am, she's asking that I'm taking steroids regularly. Can I continue or stop? Now steroids. Why steroids only? We can talk about any kind of a medication. Any kind of a medication. स्टेरॉइड से क्यों, हम किसी भी मेडिसिन के बारे में थोड़ा समझेंगे. हमारा शरीर ना एक तरीके से काम करता है. देयर इज एन ऑर्डर टू आवर बॉडी. हमारे शरीर का एक ऑर्डर है ना. ऐसे मान के चलिए कि इट वर्क्स लाइक अ डांस. ये डांस की तरह काम करता है. किस समय कौन सी मुद्रा, कौन सा पॉस्चर है ना, कौन सा जोर लगा रहे हैं आप,
तो ये उस तरीके से काम करता है। तो डांस अगर आपका शरीर कर रहा है, देयर इज एन ऑर्डर टू दिस बॉडी। एनीथिंग दैट यू डू which disrupts the order is not good for you. Yes or no? कोई भी चीज जो उस में विघ्न डाले वो ठीक नहीं चलेगा, वो काम नहीं करेगा। देखो हमारे देश में, हमारी परंपराओं में सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला किसको एड्रेस करते हैं? विघ्नहर्ता, है ना? किसको एड्रेस करते हैं? विघ्नहर्ता। कि आपकी लाइफ जो है वो कैसे खराब होगी अगर आप इसमें कुछ विघ्न डालेंगे, कुछ। इफ यू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अ विघ्न, so it will get disrupted and you will get into disorder. Now you are calling it as a disease. आप डिसऑर्डर में आएंगे, जिसको आज के टर्मिनोलॉजी में आप डिजीज बोल रहे हैं, है ना? तो विघ्न कभी भी नहीं डालना चाहिए। शरीर के काम में विघ्न कभी भी नहीं डालना चाहिए। और इसको आयुर्वेद में कैसे कहते हैं? नेवर स्टॉप एनी इंटेंस अर्ज इन योर बॉडी। अपने शरीर के किसी भी वेग को जबरदस्ती करके ना रोकें। हाँ, तो आपके जिंदगी में जब भी वेग आ रहे हैं, वेग किस चीज का? किसी भी चीज का। भूख लग रही है बहुत तेज, तो इसको बहुत समय तक भूखा ना छोड़ें, या तो इसको ट्रेनिंग दो बचपन से। फिर यूरिनेशन आ रहा है तो रोक के नहीं रखना है। हाँ, डिफिकेशन रोक के नहीं रखना है। उल्टी आ रही है, रोकना नहीं है। तो अभी तो उल्टी बंद कर देते हो ना, बच्चों को भी बंद कर देते हैं ना, ऑनलाइन सेट्रोन खिला देते हैं, उल्टी का गोली या सिरप पिला देते हैं, है ना? दस्त आ रहे हैं तो फिर दस्त को नहीं रोकना चाहिए, वेग को नहीं रोकना चाहिए। हम तो दस्त बंद कर देते हैं, है कि नहीं? और हमको तो मालूम है कि दस्त बंद करने की दवाई कौन सी होती है, घर पे रखा हुआ है ना सबने। तो वेग को हम रोक रहे हैं ना। तो शरीर का एक ऑर्डर है, तरीका है काम करने का, उसमें विघ्न ना डालें। मगर बचपन से विघ्न डालने लग गए। अभी बच्चा बीमार नहीं हुआ, मगर 24-25 इम्यूनाइजेशन के टीके, केमिकल उसके शरीर में डालने लग गए। तो विघ्न अगर हम डाल ही रहे हैं, उसके बाद प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन किसी को हो रहा है, बार बार यूरिन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं आपको बहुत बेसिक, आप लोग समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, लाइफ का सेंस सबके अंदर है। मैं वही लाइफ का सेंस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बार बार यूरिनेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या गड़बड़ हो गई? आपके ब्लड में कोई अनवांटेड चीज होगी, कोई एक ऐसी चीज होगी जो आपका शरीर नहीं चाहता, वो निकाल रहा है ना, वो निकाल रहा है ना वो। तो आपको यूरिनेशन बंद करना चाहिए। तो आप अपने शरीर के अगेंस्ट में चले जाओगे ना, अपना नुकसान कर दोगे। आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा यूरिनेशन को सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, ताकि जल्दी से हो जाए काम, है कि नहीं है? अगर आपका शरीर दस्त हो गए, लूज मोशन हो गया, इसका मतलब क्या? आपके पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर कोई ऐसी चीज है जो नहीं चाहिए बॉडी को, तो वो बाहर निकाल रहा है। और आप क्या करेंगे? वो बंद कर देंगे। हाँ, नॉरफ्लॉक्सासिन टिनेडाजोल का कॉम्बिनेशन खा लो, ओफ्लॉक्सासिन नॉरनिडाजोल O2 का कॉम्बिनेशन खा लो, बस बंद हो जाए। आप अच्छा काम कर रहे हैं अपने शरीर के साथ।
10 लगाने में मालूम है क्या करना पड़ता है? कोई बहुत ही कड़वी चीज खा लो, 10 लग जाएंगे, लग जाएंगे ना। तो किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो दवाई बन जाती है ना उसकी, है ना। अगर दस्त लग रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको? हमारे को विष को खत्म करने की चीज, यानी कोई भी जो तीखी चीज है उसको बंद करना। कोई अगर उसको, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा मेलो डाउन कर दे, ऐसा कुछ लेंगे तो ठीक हो जाएगा वो, है ना। मगर हम कर क्या रहे हैं? हम तो अगेंस्ट में ही जा रहे हैं ना अपने शरीर के। तो हमारा शरीर दो तरीके से रिस्पॉन्स देता है ना। दो ही काम करता है, या तो भोजन देंगे तो उसको यूज करेगा, कोई गलत चीज जाएगी तो उसको निकालेगा, यही करेगा ना। ये दो तरीके से ही काम करता है ना हमारा शरीर। इफ यू गिव द बॉडी फूड, मगर व्हाट इज बॉडी इज फूड। देखिए, ये मैं आपको जितनी चीजें बता रहा हूं ना, इन अ वन गो यू विल नॉट बी एबल टू गेट एवरीथिंग। मे बी यू विल फॉरगेट, कुछ समय बाद में कुछ चीजें भूल जाएंगे। तो जब भी आपके साथ में वीडियो शेयर किया जाता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ही नहीं, बहुत ज्ञान है उसके अंदर। तो उसको अगर 2-3 बार देखेंगे ना, तब आपको समझ में ठीक से आएगा। नो, व्हाट इज योर फूड? आपका भोजन क्या है, जरा इसको समझे। अभी आप क्या बोलते हैं? प्रोटीन, विटामिन, ये में क्या मिनरल और कार्बोहाइड्रेट और क्या क्या बोलते हैं ना ये। देखिए, ये तो आप जानते नहीं कि क्या चीज है ना। आप कहीं और जाके उनकी भाषा के विरुद्ध किसी भी भाषा में बोलिए, बोलिए कि कार्बोहाइड्रेट तो एक फल होता है, अफ्रीका में पाया जाता है, तो मान लेंगे ना, पढ़ा सकते हैं किसी को। तो आपने तो देखा ही नहीं, है कि नहीं। अंधविश्वासी हो गए ना हम लोग, जो जानते नहीं उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, जिसका मालूम ही नहीं। मगर आपके लिए, इन योर सेंस, आपको जब पैदा किया गया था, जब आप पैदा हुए थे, तो क्या आपको मालूम नहीं था कि क्या मुझे खाना है, क्या मुझे नहीं खाना? आपके पास में वो सेंस तो दिया ही गया था ना। नहीं तो मुझे बताइए, कौन से जानवर को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि ये भोजन आपके लिए, देखो आप ज्यादा प्रोटीन आपको लेना चाहिए? कौन से एनिमल को समझाओगे? उनको मालूम ही है उनको क्या खाना। तो आपके शरीर को मालूम ही है कि क्या खाना, तो शरीर डिमांड करता है ना फूड की। अच्छा, फूड की ही डिमांड नहीं करता, इट ऑलवेज डिमांड ऑफ अ सर्टन टेस्ट। हमेशा ये किसी एक टेस्ट की डिमांड करता है, और वो टेस्ट वाला कोई भोजन आपके सामने अगर आ जाएगा तो मुंह से लार गिरने लग जाएगा, सलाइवेशन होने लग जाएगा, क्रेविंग होने लग जाएगी, है कि नहीं। वो ही आपका भोजन है। क्या इतना सेंस हमारी बॉडी को नहीं है? क्या है ना, सभी की बॉडी को है। तो वेन एवर बॉडी डिमांड्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, हम सारा का सारा हमारा भोजन प्रोसेस हो गया है। नहीं तो हमारा शरीर हर सीजन में उस सीजन का फ्रूट डिमांड करता है। अभी तो कुछ डिमांड नहीं करता ना। अभी तो आप अमेरिकन ब्रेकफास्ट करना चाहते हो, ऑरेंज जूस इन द मॉर्निंग चाहिए ही चाहिए। मतलब बेवकूफों को अगर फॉलो करेंगे तो बेवकूफ ही बन जाएंगे। तो आप लोग बुद्धिमान है, आपके पूर्वज बड़े समझदार लोग थे। ये फिरंगियों को क्यों फॉलो करना है आपने? उन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी, अभी भी नहीं आंखें खोलेंगे क्या? तो जब भी, अगर आप अपने भोजन में, आपको बोला गया है ना कि 50% पार्ट तो नेचुरल रखो। अगर नेचुरल, और वो भी क्या, सीजनल और रीजनल।
और वही आपके बॉडी की क्रेविंग होती है। लेकिन आपका शरीर अगर बीमार पड़ेगा तो वो अलग अलग स्वाद की डिजायर या इच्छा करेगा, वो ही उसका भोजन है उस समय बीमारी को ठीक करने के लिए। कम से कम इतना तो मालूम है ना, प्रेग्नेंट लेडी को हम कभी भी रोकते नहीं है तुमको क्या खाना है, तो वो उसको देते हैं कि नहीं देते? तो ऐसा हमारे बच्चों को क्यों नहीं देते हम, उनसे पूछ के, क्योंकि हमें लगता है हम ज्यादा समझदार हैं। मगर हर एक का शरीर समझदार होता है। उसके शरीर से पूछिए कि भाई क्या खाने का मन कर रहा है। घर में बोलते हैं ना, लेकिन आजकल के टर्म्स में क्या बोलते हैं, भाई चाइनीज खाना है, तंदूरी खाना है, कि क्या खाना है? हाँ, उस उसकी बजाय स्वाद में बात कीजिए। आज कुछ चटपटा हो जाए, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मगर जो भी स्वाद वो प्रकृति की तरफ ज्यादा हो, है ना। आपका खुद का बनाया हुआ स्वाद इतना बढ़िया नहीं होता जितना कि नेचर ने बनाया है स्वाद। आपको मालूम है किसी भी फल के स्वाद को हम रिप्लिकेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। आसपास में थोड़ा बहुत जाते हैं अननेचुरल चीजों से, मगर किसी भी फल के स्वाद को हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो आपका भोजन क्या है, इसका मतलब कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, नहीं, ये सब अंधविश्वास है ना। अंधविश्वास है, जादू टोना है, इन सब के चक्रों में नहीं पड़ना। तो आपको समझदार बनना है। क्या समझदार बनना है? आपका शरीर जो डिमांड कर रहा है वैसा भोजन आपकी जरूरत है, तो उसको उससे महरूम ना करें। समझ में आई बात? आप शरीर के वेग को ऑपोज नहीं करना, उल्टा नहीं करना, टॉर्चर नहीं करना। जो शरीर की डिमांड है उसको पूरा कीजिए, मगर अपने आइडिया से नहीं, प्रकृति में जैसी वो चीजें मिलती है उससे। ठीक है ना। तो स्वीट खाने का क्रेविंग है तो बहुत प्राकृतिक चीज है, नेचुरल चीज है ना। उस सीजन का मीठा फ्रूट कौन सा है? ठीक है। गुड़ हमेशा ही अवेलेबल हो सकता है ना। उसमें भी अलग अलग तरीके के गुड़ होते हैं। खजूर के गुड़ का स्वाद बड़ा कमाल का होता है, बड़ा मजेदार होता है। पाम शुगर यानी ताड़ का गुड़ जो होता है वो मीठे में कम होता है। नारियल का गुड़ अलग स्वाद आता है ना। जूसेस अलग अलग मीठे अलग अलग स्वाद देते हैं। और आपको मालूम होगा मुझे ये जूस पीने का मन कर रहा है या ये वाला मीठा मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो अगर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और वो अगर नहीं देंगे, बिल्कुल मधुमेह हो गया जी, अब तो मीठा बंद, मीठे से ही मधुमेह ठीक होता है, मालूम है आपको, क्योंकि डिमांड कर रहा है ना शरीर। चीनी नहीं देंगे कभी भी डायबिटीज ठीक नहीं होगी। चीनी नहीं चाहिए अपने को। चीनी तो देखो बहुत प्रोसेस्ड है। चीनी ना, एक्चुअली चीनी मीठा नहीं होता। आपको मालूम है चीनी के स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। आफ्टर टेस्ट खट्टा होता, खटास आ जाती है मुंह में। तो आफ्टर टेस्ट समझो ना, आफ्टर टेस्ट समझो, ये क्या असर देगा आपके शरीर को, खटास दे देगा। तो चीनी अच्छी चीज नहीं है, वो मीठा नहीं है। तो भोजन हो गया। अब भोजन देंगे, अगर सही भोजन देंगे तो शरीर इसको पचाएगा। लेकिन भोजन में अगर कुछ गलत चीज हुई तो शरीर पचाएगा उसको कि फिर इम्यूनिटी हाई करेगा, बचाएगा? बचाएगा ना। अगर पचाएगा तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, अगर बचाएगा तो इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगर आप भोजन दे रहे हैं, भोजन में कुछ गड़बड़ है, तो पचाएगा कि बचाएगा? बचाएगा ना। तो कैसे? एक को कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरे को कहते हैं मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स। ये ऐसे काम करता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्योंकि आप अगर अपने घर को बचाने लग गए तो किचन चलाएंगे या आप अपने घर को बचाएंगे?
अगर डकैत आ गए तो किचन में भोजन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। जब आप अपने को बचा रहे होते हैं तो पचा नहीं रहे होते, इतनी सी बात है। ये मंत्र समझ जाओ। जब पचा रहे हैं तो बचा नहीं रहे, जब बचा रहे हैं तो पचा नहीं रहे। और अगर सपोज कर दीजिए कि हमने इकोसिस्टम हमारा ऐसा बना दिया कि दिन रात आप अपने को बचा ही रहे हो, तो आप पचा नहीं पाएंगे कोई भी चीज सही तरीके से। मेटाबॉलिज्म लो जाएगा। इसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या क्या है? आर्थराइटिस, रिमेटॉइड, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कैंसर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और आपको जितनी लैंग्वेज में ट्रेनिंग, ग्रीको रोमन शब्द की ट्रेनिंग मिली है, वो सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इन्फेक्शन को छोड़ के, इन्फेक्शन को छोड़ के सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मालूम है हमारे पूर्वज कहते थे ना, सारी बीमारी का जड़ हमारा पेट होता है। बोलते थे ना, पेट ही सारी बीमारी की जड़ है, वहां से शुरुआत होती है हर एक बीमारी की। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो क्या हमने ऐसा कर दिया कि 24 घंटे खतरा है हमको? हाँ जी। आप जो सांस ले रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं, वो हवा का कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर कितना क्या है, बदल दिया हमने पिछले 100 साल में। तो जिस हवा में आपके पूर्वज सांस लेते थे, आप तो दूसरी हवा में सांस ले रहे हो, विच इज नॉट कंड्यूसिव फॉर लिविंग, जो जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो क्या 24 घंटे आप पे खतरा नहीं आ गया? तो इम्यून रेस्पॉन्स तो ऊपर ही रहेगा ना, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स नीचे ही रहेगा ना। प्राकृतिक वातावरण में जो फल, तरकारियां, सब्जी, अनाज होते थे, और उसी वातावरण में ह्यूमन बीइंग की पैदाइश होती है, तो उस वातावरण में प्राकृतिक तरीके से जो भी चीज पैदा होता है वो ही आपके शरीर को सूट करता है। मान के चलिए कल के दिन हम लैब में इंसान को पैदा करने लगेंगे और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड पैदा करेंगे, तो शायद उनको सूट कर जाए, मगर जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड क्रॉप आपके लिए सूट नहीं करता। क्योंकि आज तक भी हम ह्यूमन बीइंग को पैदा करने का कोई भी उपक्रम या लैब नहीं बना पाए। लेकिन हमने भोजन को बिगाड़ दिया। तो आप तो सोचते हैं जी हम तो बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप ऐसे ही सोचेंगे, क्योंकि आपके दादा और दादी और नाना और नानी जो सोच भी नहीं सकते थे, वो आज आप भोजन कर रहे हैं ना। उनको तो ठीक भोजन भी नहीं मिलता था, जो सीजन में जो पैदावार होती थी वही मिलता था, मगर आप में सारी डेफिशिएंसी थे, उनमें तो कोई डेफिशिएंसी नहीं होती थी। ये क्या कहानी है? ऊपर से आप पता नहीं कौन कौन से विटामिन भी खा लेते हो। कैल्शियम ले रहे हैं लोग, मगर कैल्शियम की कमी आज क्यों हो रही है? लाखों सालों से तो नहीं हुई।
B12, ये B6 फलाना डिमकाना, ये तो लाखों सालों से कोई डेफिशिएंसी नहीं हुई। इतने ज्ञानी हो गए, सारी डेफिशिएंसी भी हो गई, मगर उसको पूरा भी नहीं कर पा रहे। विटामिन खा के किसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है बता दीजिए? कैल्शियम खा के किसकी हड्डियां स्ट्रांग हो गई हैं? ऑस्टियोपोरोसिस किसका ठीक हो गया बता दीजिए कैल्शियम खा के? यानी कुछ तो गलत देख रहे हैं ना, हमको तो समझना पड़ेगा ना, कुछ तो गलती हो गई, कहीं तो गलत देख रहे हैं। इतनी ज्यादा हमें नॉलेज हो गई हमारे शरीर की कि सारी बीमारियां बढ़ गई। कौन सी एक बीमारी है जो कम हो रही है बता दीजिए? डायबिटीज 10 से 11% है पूरे इंडिया में, मालूम है आपको? और ये बढ़ के कहां जाएगा? बहुत जल्दी 20% होने वाला है। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया है। थायराइड, बच्चियों को भी थायराइड हो रहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बच्चों को भी हो रहा है। तो आप कम से कम एक चीज तो सोचिए ना, जेन्यून होके, एक जेन्यून इंसान के तरीके से, भाई कुछ तो गड़बड़ी है। जो ज्ञान हमने सोच दिमाग में बैठा रखा है कि हमको बहुत ज्ञानी हो गए, तो ज्ञानी होने का मतलब बीमारियां बढ़ाना होता है, तब तो ठीक है, समझ में आती है बात। ज्ञानी होने का मतलब लाइफ खराब कर देना, ठीक है, फिर तो ज्ञानी ही हो गए हम तो। कहीं तो रुक के सोचना पड़ेगा, कुछ गलत सोच रहे हैं, कोई बहुत मूलभूत गलती कर रहे हैं। और ये आप सोच सकते हैं, भारतीय लोग ही सोच सकते हैं, जो इस धरती पर पैदा हुए वही सोच सकते हैं ये सब चीजें। आप अगर ये सोचने में लगे हुए हैं कि ओके कोई फिरंगी तो निकाल ही लेगा कोई दवाई मेरी, तब तो आप गड्ढे में नीचे ही जा रहे हो, ऊपर नहीं जा रहे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या फंडामेंटली कौन सी चीज गलत कर रहे हैं। तो आप अपने शरीर के अगेंस्ट में जा रहे हो हर चीज में, हर चीज में। अब मुझे एक बात बताइए, इम्यून सिस्टम अगर कॉन्स्टेंटली अप रहेगा, यानी अपने को बचाने का ही काम कर रहे हैं, तो आपके शरीर को तो ये लगेगा ना, दिस इज नॉट द प्लेस वेयर आई कैन लिव, ये ऐसी जगह नहीं है जहां मैं जिंदा रह सकता हूं। ये सब अगर अपने शरीर को आप टॉर्चर करिए, या आपको टॉर्चर अगर किया जाए, एक टाइम आने के बाद तो आप तो कहोगे ना, गिव अप कर दोगे ना, है कि नहीं? आप बोलोगे बस बहुत हो गया, अब नहीं होता, खत्म करो सारी कहानी, अब दुकान बंद करो। मुझे बताइए, इम्यून सिस्टम को उठा के शरीर नहीं बचाएगा अपने आप को, तो कैसे बचाएगा? मगर क्योंकि इम्यून सिस्टम हमेशा ऊपर है, मेटाबॉलिक सिस्टम डाउन है, तो स्ट्रगल चलता है। भैया कब तक किचन बंद रखोगे? आप कब तक किचन बंद रखोगे? कब तक बचाते रहेंगे? तो इम्यून सिस्टम उठा हुआ है, मेटाबॉलिक सिस्टम डाउन है, तो ये उठने की कोशिश करता है, जिंदा होने की कोशिश करता है। अरे भाई मुझे भोजन भी करना है, ऑर्गन खराब हो रहे हैं, रिपेयर करना है, कैसे रिपेयर करें? हाँ, ग्रीको रोमन शब्द बोल के हो जाता है काम। कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया जी, बस अब तो काम हो जाएगा, अब तो हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। स्कोलियोसिस हो गया जी, बस अब तो ठीक हो जाएगा, बोल दिया हमने, हम ज्ञानी बन गए। स्कोलियोसिस नाम जो बोल दिया हमने, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल दिया, बस ठीक हो जाएगा अब तो।
क्योंकि फिर वही इम्यूनिटी अगर उठी रहेगी तो मेटाबॉलिज्म पूरा डाउन रहेगा, कुछ रिपेयर नहीं होगा, आपके ऑर्गन खराब होने शुरू हो जाएंगे, काम नहीं कर सकेंगे, मसल जो है फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, रिपेयर नहीं होगा मसल का, नर्वस सिस्टम का रिपेयर नहीं होगा, न्यूरोपैथी हो जाएगा, हड्डियों में जोर नहीं बचेगा, रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क होना शुरू हो जाएगा क्योंकि रिपेयर ही नहीं हो रहा। लंबे समय तक केवल बचाएगा शरीर अपने आप को। फिर आखिरकार आके हम क्या कहेंगे, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम कहेंगे ये जो इम्यून सिस्टम है ना, यही गलती है, सबसे बड़ी गलती है शरीर की, इसी को नीचे करो, इसी को मारो। स्टीरॉयड अभी तक पूरा नहीं हुआ था काम, अभी तक कुछ बच गया था, अब चलो वो उसको भी खत्म करता है, उस इम्यून रिस्पॉन्स को खत्म किया जाता है। क्या ये अच्छी चीज है? मैं एक बात आपसे कहना की कोशिश और कर रहा हूं, अगर शॉर्ट टर्म आपको किसी भी तरीके से किसी चीज से फायदा होता है, इट्स ओके। एक बच्चे को ज्यादा परेशानी कर रहा है, थप्पड़ मार दो, जोर से लगाओ, चुप हो जाता है, ये तो समझ में आती है बात, हाँ ठीक है बंदे ने गलती की, बच्चे ने चुप करा दिया। मगर ये क्या तरीका है, नाश्ते के बाद 4 थप्पड़, लंच के बाद में 5 थप्पड़, डिनर के बाद में 8 थप्पड़, ये है तुम्हारी लाइफ? ये टॉर्चर बच्चा खत्म हो जाएगा ऐसे? कभी थप्पड़ मार दिया, इट्स ओके, मान लिया कि आपके पास ऑप्शन नहीं था, मगर थप्पड़ मार के मतलब जिंदगी बिताना, ये तो कोई बहुत, मतलब ये कौन करेगा? शायद जानवर भी ये चीज जानते हैं। शेर भी रोज शिकार नहीं करता, जब उसको भूख लगती है हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक बार, और उससे ज्यादा हिरण की पैदाइश होती है, तो बैलेंस बनता है, हमेशा हिरण ज्यादा ही होंगे। अगर वो पेट भरा है, वो किसी को तरफ में नहीं भूखे नजर से देखता। हमने क्या कर दिया, इसी शरीर से तो जिंदा रहते हैं, अब वो बेचारा बचा रहा है अपने आप को, इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है? आपने खतरा डाला ना, तो बचाएगा कैसे वो? फिर कहते हो नहीं ये बचाना भी खत्म कर दो, स्टीरॉयड देके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। स्टीरॉयड अगर लंबे समय तक रहेंगे, सारे ऑर्गन खराब हो जाएंगे, लाइफ खराब हो जाएगी। आप 10 दिन स्टीरॉयड ले लो, आपको दिखना कम हो जाता है, मालूम है, हेजी दिखता है, माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती, शरीर फूलने लगेगा, सूजन आ जाएगी शरीर में। तो क्या स्टेरॉइड लेना चाहिए? तो क्या छोड़ दें? छोड़ने से रिस्क चला जाएगा आपका। तो हमसे पूछते हैं स्टेरॉइड छोड़ दें, हम तो यही बोलेंगे ना, हमने तो नहीं लिखा स्टेरॉइड, आप हमसे क्यों पूछो? क्योंकि हो सकता है कि आपके ऑर्गन इतने डैमेज हो गए कि स्टेरॉइड लेने के बाद शायद 2 दिन और लाइफ थी, वो एक ही दिन की रह गई, तो हमारे ऊपर आ जाएगा इल्जाम। तो क्योंकि ड्रग एडिक्ट को अचानक से ड्रग छुड़वा दो तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है उसको, क्योंकि आपने शरीर को आदत भी दिला रहे हैं ना किसी चीज की, कि आप सपोर्ट से जिंदा रहें, आप अपने आप जिंदा ना रहें, तो जब सपोर्ट हटा दोगे तो कोलैप्स भी कर सकता हो।
अब देखो, बड़ी विडंबना है कि अगर आप स्टेरॉइड खाओगे तो आप खत्म कर रहे हो अपने आप को, सडनली छोड़ोगे तो खत्म होने के चांस है। तो अच्छा क्या रहेगा? अच्छा क्या रहेगा? अब मैं आपको उस तरफ में ले जा रहा हूं कि आपको करना क्या है लाइफ में, कैसे आप अभी से बेटर हो सकते हैं, अच्छी स्थिति में आ सकते हैं, और क्या आप आगे चल के स्टेरॉइड छोड़ सकते हैं। 100% छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर स्टेरॉइड लेके जिंदा रहने का के लिए डिजाइन नहीं हुआ। हमारा शरीर बीपी की गोली लेके जिंदा रहने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, ना ही डायबिटीज और थायराइड की गोली। तो इसका मतलब है कि ये हमने इकोसिस्टम तो खराब कर दिया। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, और ये हर तरीके से पूछा जा सकता है, आप सोच सकते हैं। किसी का ब्लड प्रेशर 200 बटा कुछ है, 200 ऊपर की वैल्यू सिस्टोलिक मानते हैं। 10 इंसान 200 के ब्लड प्रेशर के सामने खड़े कर दीजिए, सबके सिम्टम अलग अलग होंगे। किसी को चक्कर आ रहा होगा, किसी और कईयों को नहीं आ रहा होगा, सेम 200 के ब्लड प्रेशर में। तो अलग अलग सिम्टम आ रहे होंगे। तो 200 के ब्लड प्रेशर से अगर 10 इंसान है, 10 के सिम्टम अलग आते हैं, तो ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है क्या इसके लिए? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? आपके शरीर की सहने की क्षमता। 4 रोटी 10 लोगों को खिलाइए, एक को हजम नहीं होगी और एक 4 और मांगेगा। तो 4 रोटी प्रॉब्लम है क्या? आपका हाजमा प्रॉब्लम है ना? तो ब्लड शुगर प्रॉब्लम है क्या? आपके सहने की क्षमता प्रॉब्लम है ना? ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आपके शरीर की क्षमता में प्रॉब्लम है, आपके टॉलरेंस में प्रॉब्लम है। आपके टॉलरेंस में प्रॉब्लम है ना? 10 किलो वेट 10 लोगों को बोलिए उठाने के लिए, एक से उठाया नहीं जाएगा। एक ऐसा भी इंसान होगा जो कहेगा और 20-25 डाल दो। तो 10 किलो वेट प्रॉब्लम है क्या? या आपके शरीर का टॉलरेंस क्षमता प्रॉब्लम है? कोई भी सिचुएशन में, एक ही सिचुएशन में 10 लोगों को रख दीजिए, 2 को स्ट्रेस होगा, 4 को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा। तो सिचुएशन से स्ट्रेस होता है क्या? या आपके झेलने की क्षमता की वजह से है वो? सेम कोर्स 10 बच्चों को पढ़ाओ, एक आत्महत्या कर लेगा और एक उसके लिए बिल्कुल आसान है वो। तो जो कोर्स हमने पढ़ाया बच्चों को, क्या वो कोर्स प्रॉब्लम है क्या? आप इसको सोचिए ना, लाइफ में हर चीज को यहां पे डालिए। ये तो सब कुछ ही गलत सोच रहे हैं हम। तो ना तो आपके ब्लड शुगर का लेवल प्रॉब्लम है, ना तो थायराइड का लेवल प्रॉब्लम है, ना तो ब्लड प्रेशर का लेवल प्रॉब्लम है, ना तो जो भोजन खा रहे हैं वो प्रॉब्लम है। सेम भोजन 10 लोगों को खिलाओ, आप कितना ही भोजन चेंज कर लो, जो आपने काम नहीं किया वो कहां नहीं किया? अपनी टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए तो काम ही नहीं किया, अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तो काम ही नहीं किया।
ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहीं और है, देख कहीं और रहे हैं। ये तो वही बात है कि एक बेवड़ा हुआ करता था, उसकी वाइफ ने पकड़ के बोला कि नहीं भाई, कल से तो दारू बिल्कुल बंद। कहता बिल्कुल बंद। अब अगले दिन वो बेचारा कैसे एकदम से दारू छोड़ देगा? तो सोचता है कि अच्छा जब बीवी सो जाएगी ना उसके बाद जाऊंगा, तो पता नहीं चलेगा उसे। अब इस चक्कर में, छोड़ने छाड़ने के चक्कर में, उस दिन उसने 2-4 पैग एक्स्ट्रा लगा लिए, है ना, देर से पिया। मगर दो वही होता है ना कि भाई कल तो व्रत है, आज ज्यादा खा लो, व्रत के बाद में और ज्यादा खा लो कि व्रत तो खत्म हो गया। ये ह्यूमन बीइंग की ना थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि जो है ना, वो हर जगह काम करती है। तो बेचारा रात में गया, और क्या है, रात था, अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट भी बंद हो गए थे, तो बेचारा नाली वाली में गिर गया, चोट वोट लगी उसको। अब घर पहुंच के बाथरूम में जाके अपने चोट देख रहा वो शीशे में, और पट्टी वगैरह किया उसने थोड़ा, जाके सो गया। सुबह सुबह उसकी वाइफ जो है, उसकी धर्म पत्नी, एक बाल्टी पानी लेके आती है, उसके ऊपर डाल देती है। अचानक से उठता, क्या हो गया? कहती है मैंने तुम्हें बोला था दारू नहीं पीनी है। तो उसने कहा कहां, दारू कहां पी मैंने? तुमको कैसे पता चला मैंने दारू पी कि नहीं पी? फिर खींच के ले गई बाथरूम में। कहती देखो, उसने सारी पट्टियां शीशे पे लगाई हुई थी। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? If the problem is here and you are solving somewhere else, do you think you will get any help? If the bruises are on your face and you put the plasters on the mirror, do you think you will get help? सो ये हवा जो बना दिया है कि ये प्रॉब्लम है, आपका फूड ही प्रॉब्लम है, तो आज भी तो यही फूड खा के कितने लोग हेल्दी हैं? मेनी पीपल आर हेल्दी एंड दे आर ईटिंग एनीथिंग। इनफैक्ट आई एम ईटिंग एनीथिंग। तो वंस आई वाज इन अ, ये मैकडोनल्ड का जो आउटलेट होता है ना, वहां पे बैठा होता है। आई वाज सिटिंग इन अ मैकडोनल्ड आउटलेट एंड समबडी हु न्यू मी केम एंड दे सेड आप यहां पे कैसे? हाउ यू कैन बी इन द मैकडोनल्ड स्टोर? ये सब मेरे लिए ही है, आप लोग कैसे आ गए? दिस इज व्हाट आई रिप्लाइड, these are all for me, not for you. You'll not be able to digest these things. You'll get ill. आप बीमार हो जाएंगे यहाँ के, प्लीज ना आए, ये तो हम लोगों के लिए है। नहीं, इज इट नॉट अप्रोप्रिएट? If I can digest these things and I don't get ill, then that is for me. वो मेरे लिए है ना, मैं उसको खा के बीमार नहीं पड़ूंगा, आप बीमार हो जाओगे। तो आपको भी मैं ऐसे ही बनाना चाहता हूं। सो दिस स्वामी इज डिफरेंट। हाँ, वो मैगी का ऐड आता है ना, सॉस का। दिस स्वामी इज डिफरेंट। ही डजंट आस्क मनी फ्रॉम एनीबडी। इनफैक्ट ही गिव्स मनी टू मेनी पीपल। स्वामी का कोई शेड्यूल नहीं, ही ईट्स एनीथिंग एनीवेयर। ऐसा ही चाहिए ना। कोरोना आ जाए तो आप कोरोना के लोगों की सेवा करें, ऐसा चाहिए ना, कि डर के मारे छुप जाएं। तो आपका टॉलरेंस कैसे बढ़ेगा? फिर से एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल हमेशा मैं देता हूं। दिस इज द एग्जांपल दैट आई गिव एवरीवेयर, प्लीज अंडरस्टैंड इट।
टॉलरेंस मीन्स बेयरिंग कैपेसिटी, झेलने की क्षमता. इफ यू लिफ्ट 10 kg वेट, हाउ डू यू टॉलरेट दैट वेट? 10 किलो का सामान उठाते हैं तो उसको झेलते कैसे हैं? सांस रोक के. 20 किलो उठाने के लिए आपको ज्यादा झेलने की क्षमता होनी चाहिए. तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? वॉट यू हैव टू इंक्रीज विद इन योर सिस्टम? योर ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी, इजंट इट? This is what you are training yourself into. Yes or no? I can give you any number of examples, but you think, आपको लगता है everything can change overnight. No, not at all. आपको पैदा गर्भ में पलने के लिए भी 9 महीने लगे थे. And then after many years, you started developing your personality. It took you how many? 6 to 8 years. 6 से 8 साल लग गए तब जाके एक पर्सनालिटी आपकी आनी शुरू हुई. और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चालू होने के लिए तो 10-12 साल लग जाते हैं. तो ये दर्द की दवाई का जो इंप्रेशन है ना, द पेन किलर इंप्रेशन इन योर माइंड, यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ दैट. पेन कैसे खत्म करते हैं? व्हाट इज पेन? पेन इंडिकेट्स वेयर रिपेयर इज नीडेड. नाउ इफ यू सी अ रूफ, अगर छत, कंक्रीट का छत देखते हैं, now they at some point there is some kind of a damage, तो आप मार्क लगा देते हो ना कि यहां 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 रिपेयर चाहिए, या हर जगह ऐसे ही करते हैं. दिस इज हाउ वी इंडिकेट वेयर और लोकेट वेयर रिपेयर इज नीडेड. कहां पे रिपेयर चाहिए वहां पे मार्क लगा देते हैं ना. पेन इज अ मार्कर. दर्द वो मार्कर है which tells your body where repair is needed. कहां पे रिपेयर की जरूरत है? जरा खरोंच लगा लो, खरोंच लगाओ जरा, दर्द होगा, पेन शुरू होगा, इन्फ्लेमेशन होगा. दैट इज अ मार्कर. और हम उस मार्कर को खत्म कर देंगे. प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, पेन किलर क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर. नाम में ही ऐसा है, टॉर्चर है. फर्स्ट लिवर बाईपास, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. आपकी दवाइयां ये सब हैं. नाम में ही टॉर्चर लिखा हुआ है. कौन सा गुंडा है? नाम में ही लिखा हुआ है, ये तो भाई वहां का गुंडा है. गुंडागर्दी को इलाज बोलते हैं. सो पेन किलर से आपका रिपेयर वर्क गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो आज रिपेयर वर्क नहीं हो पा रहा है. इफ द रिपेयर इज नॉट हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, देन व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल? जस्ट लुक एट योर फर्स्ट एड बॉक्स एट होम. घर में जो आपने दवाई का भंडार, पोटली रखी हुई है, जरा देखिए. पेन किलर तो रेडी होता है. और यही काम हम बच्चों के साथ भी करते हैं. अच्छाई के नाम पे उनको हम दवाई देते हैं ना. फॉर गुड वी गिव देम मेडिसिन बिकॉज वी कांट बेयर द पेन ऑफ आवर किड. यू नो, कितनी अच्छी बात है ना. बच्चों का दर्द नहीं सहन होता जी. बहुत भला काम कर रहे हैं हम तो. पूरे वेस्ट ने गॉड के नाम पे ही करोड़ों औरतों को जला डाला.
विच हंटिंग के चक्कर में यूरोप ने गॉड के नाम पे पूरी दुनिया को ही वो कन्वर्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छाई के नाम पे ही मारा है। हिटलर ने अच्छाई के नाम पे ही तो मारा था। हिटलर ने कौन सा गलत काम किया था बताइए? हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था? क्योंकि यहूदियों ने क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया था। अच्छा काम कर रहा था ना वो तो। अमेरिका ने इराक पे हमला किया, अच्छा काम किया ना। वहां तो अच्छा काम करने के लिए करते हैं वो। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। We Indians are completely different from how people behave in other parts of the world. But even after being more intelligent, more wise, we think we are slave of West. 70 साल से ज्यादा हो गया ना हमने अपने बच्चों को कुछ अलग पढ़ाया, ना अपने कल्चर को वापस रिवाइव करने की कोशिश की, ना अपनी भाषाओं को वो मान्यता दी, ना अपने कुल देव इष्ट इनको वापस स्थापित किया। ये शायद कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं करती। अगर वो गुलाम होती तो वो इमीडिएटली खत्म कर देती सब कुछ। हमने नहीं किया। हमारी टॉलरेंस ही हमारी कमजोरी ना बन जाए, ये हमको देखना पड़ेगा। तो जो काम हम कर रहे हैं, इफ वी आर इन द नेम ऑफ ट्रीटमेंट, अच्छाई के नाम पे अगर बच्चों को आप बार बार बुखार की दवाई, दस्त की दवाई, उल्टी की दवाई, दर्द की दवाई देते हैं तो आप उसके शरीर को बर्बाद कर देंगे। 100% गारंटी लिख के रख लीजिए। प्लीज डोंट प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन ऑन द नेम ऑफ गुड, because you don't know what is good. Otherwise you would have been healthy. उनको सहने की क्षमता उनकी बढ़ाइए। तो by doing कुंभक you are basically increasing the tolerating capacity of your body which is needed. ये एग्जाम्पल बार बार मैं कह रहा हूं। किसी को चक्कर, गिडीनेस, देखो गिडीनेस भी आ गया, क्वेश्चन नहीं आ गया। सो इफ यू आर फीलिंग गिडी, यू आर फीलिंग नॉट स्टेबल, हाउ डू यू ट्राई टू बी स्टेबल? एक पांव पे खड़े हो जाइए, स्टैंड ऑन वन लेग, ट्राई टू बैलेंस। हाउ डू यू ट्राई टू बैलेंस? इफ समबडी पुशेस यू, कोई धक्का देता है आपको और आप नहीं गिरना चाहते, तो अपने को अड़ा के कैसे रखते हैं? सांस रोक के करते हैं, कोई और तरीका नहीं है। टेल समबडी टू पुश यू, आपको धक्का देने के लिए किसी को बोलिए, देखिए आपको अड़ना है तो सांस रोक के अड़ना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। यू बैलेंस योरसेल्फ बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, यू एक्चुअली फोकस and you will see your breath will slow down and it will stop at certain places. अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है तो आपकी सांस रुक जाती है। यू वॉचिंग समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली योर ब्रेथ गेट्स हेल्ड इफ यू आर टू मच फोकस्ड ऑन समथिंग। सडन कोई एक सीन आता है, डरते हैं, डर से कैसे बचते हैं? डर से कैसे बचते हैं? कोई आपको मुक्का मार रहा है तो कैसे बचाएंगे अपने आप को? या डर गए तो कैसे बचाते हैं? या ऊपर से कूद जाइए नीचे, क्या होगा? योर ब्रेथ विल गेट हेल्ड, सांस रुक जाएगी। हॉरर मूवी का एक सीन आता है, सांस रुक जाती है। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। So what is immunity?
Protecting yourself, isn't it immunity? So how to increase your immune strength? By holding your breath. By practicing breath hold, कुंभक प्रैक्टिस करके आप अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. When you do any kind of an activity where you push yourself a little, जब आप कोई भी काम करते हैं जिसमें आप जोर लगाते हैं, हाउ डू यू डू दैट? कैसे करते हैं? पुशिंग, पुलिंग, जंपिंग, कैसे करते हैं? कोई भी जोर लगा रहे हैं, झाड़ू लगाना हो गया, पोछा करना हो गया, वॉकिंग, जॉगिंग, क्लाइंबिंग, गाड़ी पे चढ़ना हो गया, उतरना हो गया. हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू मेक एफर्ट? By holding your breath in various variable proportion, अलग अलग अनुपात में. Dancing, singing, जोर कैसे लगाते हैं? इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ. एक्चुअली में इसका एक अलग नाम है, इसे कहते हैं आह्वानी अग्नि. एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, इट ऑलवेज स्टार्ट विथ योर मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ. आपकी जैसी मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ होगी, अगर भोजन नहीं किया तो आवाज कैसी निकलती है? ढीली निकलती है ना. तो बेचारे गायक को भोजन ही मत दो 2-3 दिन, उसकी आवाज ही नहीं निकलेगी. नहीं. तो जब तक भोजन नहीं पचाएगा, तो हमारे यहां कहावत है ना, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला. भाई भजन भी करना है तो पेट भरा होना चाहिए, ध्यान भी करना है तो पेट भरा होना चाहिए, साधना करनी है, मुक्ति भी. मुक्ति में पहली कंडीशन क्या है? पेट भरा होना चाहिए, तब मुक्ति. पेट भरा होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है योर बॉडी शुड बी इन अ गुड मेटाबॉलिक स्टेट. ओनली देन यू विल थिंक अबाउट समथिंग एल्स. तभी आप जीवन में कुछ और सोचेंगे. अगर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक नहीं है तो आपके जीवन में केवल एक ही चीज रहेगी, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. अपने को कैसे बचाएं. मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी. इफ योर मेटाबॉलिक हेल्थ इज वीक, you will have only problems in your life. Anxiety, fear, uncertainty, insomnia, याददाश्त कमजोर हो जाना, डिमेंशिया, आउट ऑफ कंट्रोल, पार्किंसन, प्रेशर वेरिएशन इन योर बॉडी, टिनाइटस. आपके ईयर ड्रम प्रेशर से ही तो कंट्रोल में रहते हैं. ब्लड प्रेशर, नॉन कंड्यूसिव मेटाबोलाइट, डायबिटीज, शुगर, ग्लूकोज, metabolic fluctuation, protein formation deviation, thyroid. तो मेटाबॉलिक हेल्थ अगर आपको बढ़ाना है तो कुंभक करना ही पड़ेगा. वेरिकोज वेन, देखो वेरिकोज वेन, प्रेशर ग्रेडियंट, व्यान पक्ष, व्यान क्रिया कुंभक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. And you have to tense your body, especially the part where there is varicose vein. उस एरिया को आपको थोड़ा टाइट रखना चाहिए. You will see, you will get immediate result. Varicose vein, the व्यान शक्ति of your body or the pressure gradient of your body, जो कि आपको ऊपर पुश कर रहा है ब्लड को. Then the second factor is उदान शक्ति, वो आप अपने बाकी प्रैक्टिसेस में कर ही रहे हैं. द प्रॉब्लम इज इफ यू गिव अ क्रिमिनल मोर पावर, व्हाट विल दैट क्रिमिनल डू?
that criminal will do more criminal activity, isn't it? अगर एक गुंडे को अगर आप ज्यादा शक्ति दे देंगे तो और गुंडागर्दी करेगा ना वो। आप लोगों का शरीर अभी कैसा है? नॉर्मल तो नहीं, ऑर्डर में तो, डिसऑर्डर में है ना। डिसऑर्डर, योर बॉडी इज इन डिसऑर्डर। You give your body more power. What will your body do? It will also try to create more disorder if you don't do it properly. एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। लड्डू बनाने हैं, बूंदी रखी हुई है ना, बूंदी बूंदी यू नो, लड्डू अगर बनाने हैं, बूंदी रखी हुई है। हाउ टू मेक लड्डू आउट ऑफ बूंदीज? मंत्र जाप कीजिए ना, कौन सा आपका फेवरेट मंत्र, हो जाएगा, लड्डू बनेगा। इफ यू डू मंत्र जाप। नो, पॉजिटिव थिंकिंग, लिविंग इन द मोमेंट, मैनिफेस्टेशन। सिर नीचे पांव पर कर लो, योगा करो जरा। मगर हाथ में लेके थोड़ा जोर लगाएंगे तो लड्डू बन जाएगा। Isn't it? By making an effort only you can create or you can make laddus. मगर लड्डू को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? You have to, if you have to break the laddu, again you have to make an effort. जोर लगाना पड़ेगा ना। बनाने के लिए भी जोर लगाना, तोड़ने के लिए भी जोर लगाना। ये क्या बात है? ये क्या मामला है? सवाल कहां पे है? कैसे जोर लगाया? A creative effort will make laddu, a destructive effort will break laddu. क्रिएटिव एफर्ट को हम देव बोलते हैं, सुर बोलते हैं, सुर। डिस्ट्रक्टिव एफर्ट को असुर बोलते हैं, असुर बोलते हैं। आपके अंदर ये दोनों ही हो रहा है ना, क्रिएटिव एफर्ट, डिस्ट्रक्टिव एफर्ट। तो सुरों के गुरु कौन है? देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। और दानवों के, असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। बृहस्पति और शुक्राचार्य के गुरु कौन है? दोनों के गुरु महादेव। एफर्ट इज महादेव, एफर्ट इज शिव, कुंभक ई शिव। इसी एफर्ट को कुंभक बोला जाता है। इसका आप डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जब कोई काम करने में आपके मन में उल्लास, खुशी होती है, उस काम से कंस्ट्रक्टिव चीज बनती है। जो काम कर रहे हैं और मन में दुख है, तकलीफ है, उससे डिस्ट्रक्टिव चीज बनती है आपकी लाइफ में। तो आप अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं? और कुंभक सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे, हाउ यू आर डूइंग कुंभक। आर यू क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टिव एफर्ट इन योर बॉडी और आर यू क्रिएटिंग अ डिस्ट्रक्टिव एफर्ट इन योर बॉडी? That will decide how fast you will get result. एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, वो ये कि अल्टीमेटली you will get benefited only, but initially you might also feel difficulty. But that is not responsibility of Kumbhak. That is your responsibility. How you are conducting it. तो कंस्ट्रक्टिव रीजनरेशन आपको ज्यादा करना है तो मन में खुशी लानी पड़ेगी। तो क्या अभी स्माइल कर सकते हैं? कैन यू स्माइल एट दिस मोमेंट? स्माइल कर सकते हैं? स्माइल तो करो, स्माइल तो करो। कर सकते हैं ना? क्या आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई? नहीं हुई है, मगर ये चॉइस है ना आपका। यू कैन स्माइल, यू कैन क्रिएट अ
हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ एनी मोमेंट। युद्ध के मैदान में जो स्माइल करे वही कृष्ण है ना। तो आप किसी भी टाइम स्माइल कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हैप्पीनेस इज नॉट योर चॉइस। योर चॉइस इज समथिंग एल्स। आपकी चॉइस अलग है। अभी खुशी आपकी चॉइस नहीं है। अभी चॉइस है मेरा बॉस सही हो जाए, मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपए आ जाएं बिना कुछ किए, अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बन जाए। आपकी चॉइस अलग अलग है। मेरी बहू मेरी बात मान ले, इम्पॉसिबल चॉइसेस भी हैं। और चॉइस अगर इम्पॉसिबल बनाओगे तो बाकी तो छोड़ो, लाइफ में कोई कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप जब चूज करेंगे आप खुश हो सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए ना, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जब कुंभक कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूट योर प्रैक्टिस। सारा काम एक साथ भी नहीं करना। 2 प्रैक्टिस सुबह कर लो, 1 प्रैक्टिस शाम को कर लो, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1 प्रैक्टिस सुबह, 2 प्रैक्टिस शाम को कर। अंग न्यास, मर्म विन्यास, कुंभक थेरेपी। तो मर्म विन्यास में तो बॉडी हिलाना पड़ता है। इफ द पीपल आर हैव टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम, देन यू कैन एक्चुअली पोस्टपोन योर मर्म विन्यास। उसको थोड़ा आगे करेंगे। पहले अपने शरीर में वो शक्ति लेके आ जाइए। उसके बाद जोर बहुत ज्यादा ऐसा जोर नहीं लगाना कि दर्द शुरू हो जाए। कंस्ट्रक्टिव एफर्ट, कंस्ट्रक्टिव एफर्ट याद रखिए। दैव कुंभक करना है, आसुरी कुंभक नहीं करना। देव कुंभक करना, दैव कुंभक करना। मन में उल्लास, प्रसन्नता। अरे ठीक है, प्रॉब्लम तो सबको होगी ही ना। ऐसा कोई इंसान तो नहीं हुआ जिनको प्रॉब्लम नहीं हो। हम तो हमारे देश में जिनको हम भगवान मानते हैं, भगवान का मतलब अलग होता है, ईश्वर का मतलब अलग होता है। जो हमारे ही जैसे रहे, हमारे ही जैसे पैदा हुए, हमारे ही जैसे शरीर धारण किया, मगर लाइफ में एक ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। डिस्पाइट ऑफ ऑल देयर प्रॉब्लम्स, दे वर कॉन्स्टेंट इन देयर परस्यूट। अपने अंदर उनकी स्थिति एक जैसी रही। हमारे भगवान हमारे जैसे हिस्टोरिकल पर्सन है, ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, अवतार मानते हैं उनको, मगर वो तो है हमारे जैसे। मगर देखो कितनी तकलीफ के बाद में भी मर्यादा जो नहीं छोड़े, तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जो जीवन का सार समझ में आ जाए। आप बताइए, कृष्ण की लाइफ में, श्री कृष्ण की लाइफ में जितनी तकलीफ है, आप उसका 1% भी झेल पाएंगे? मगर वो युद्ध के मैदान में भी स्माइल कर रहे हैं, बिकॉज ही नोज व्हाट द लीला ऑफ लाइफ। जीवन की जो लीला है उसको समझ रहे हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस तो हमको भी करना पड़ेगा ना, खुश होने के लिए। ये जो आधा पौना घंटा सुबह शाम आप टाइम स्पेयर करें, तो इसमें खुश होने की प्रैक्टिस कीजिए लगातार। फिर हो जाएगा दुखी, फिर इधर उधर सोचने लग जाएंगे, फिर वापस ले आओ। क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे, पता नहीं दुनिया की सारी सोच, सारे थॉट्स आपके ही अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो उस समय थोड़ा खुश होने की कोशिश कीजिए, थोड़ा अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बाहर से अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश कीजिए। एक तीर कमान में तीर कितनी दूर जाएगा? जितना पीछे खींचेंगे। ये मंत्र याद रखो। आप कितने खुश हो सकते हैं लाइफ में, ये किस चीज पे डिपेंड करता है?
कितना दुख को एक्सेप्ट कर सकते हैं. योर हैप्पीनेस level is dependent on the level to which you can accept sadness. कितने, how much successful you will become in your life depends on how much you are ready to accept failure. जितना फेलियर को एक्सेप्ट करने की क्षमता है उतने ही सक्सेसफुल हो सकते. How much healthy you can become in your life depends on how much deviation, how much disorder you are able to accept and get back to order. कितनी ही मुश्किल सिचुएशन में भी अपने आप को जो समभाव में रख सके वो ही हेल्दी रह पाएगा. मुश्किल सिचुएशन तो चारों ओर हमारे है. अब आपको प्रैक्टिस करना है अपने को स्थिर रखने के लिए, कुंभक करने का प्रैक्टिस करना. आपका वातावरण ही रिस्क है, डकैत है. आपकी दवाइयां डकैत हैं, आपका भोजन डकैत है, चारों तरफ से डकैतों का हमला हो रहा है. ऐसे में अगर अपने आप को स्थिर रख सकें, उनको झेल सकें, तो हाउ मच हेल्दी यू विल बी डिपेंड्स ऑन हाउ मच टॉलरेंट यू कैन बिकम. कितना हेल्दी हो सकते हैं, जितना आप सहनशील हो सकते हैं उतना हेल्दी हो सकते हैं. ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो छोटी छोटी बातों पे क्रिप करेंगे ना, झमेला बना देते हैं. हर चीज, छोटी चीज का भी झमेला बना देते हैं. मेरी छोटी उंगली में देखो खुजली हो रही है, बस हो गया जी, प्रॉब्लम शुरू. और ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत पहाड़ टूट पड़े तो भी आप देखेंगे चुपचाप रहेंगे, कुछ नहीं बोल रहे, झेल जाते हैं उसको. इसीलिए हमारे देश में एक शब्द इस्तेमाल होता है, ये तो गऊ है. यू नो व्हाट इज दिस फॉर? स्पेशली फॉर सर्टन फीमेल्स इट इज यूज्ड. ये तो गऊ है. इसका मतलब क्या होता है? वो बेवकूफ है? नहीं 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 नहीं, शी कैन बेयर एनीथिंग, वो कुछ भी झेल जाएगी. एक और नाम इस्तेमाल करते हैं, ये तो भोलेनाथ है. भोला है. और ऐसे लोगों को देखोगे आप, वो कुछ भी झेल जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यूल हैव टू बिकम टॉलरेंट. कहीं ना कहीं टॉलरेंट कैपेसिटी आपको बनाना पड़ेगा, और वो केवल सोच के नहीं आएगा, कुंभक करके आएगा. So once you are tolerant towards many things, then you can start dropping your medicine dependency on your medicine. This is the course of action everyone should take. अपने शरीर की शक्तियां बढ़ाएं, अपने शरीर की टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ाएं, अपने शरीर का इम्यून स्ट्रेंथ बढ़ाएं, अपने शरीर का रीजनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, अपने शरीर की बुद्धिमत्ता बढ़ाएं, और उसके बाद छोड़ दें. शरीर को शरीर के ऊपर छोड़ें, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे अंदर. आप शरीर में ना तो हार्ट बीट करा रहे हैं, ना डाइजेशन करा रहे हैं, ना लिवर फंक्शन करा रहे हैं, ना किडनी फंक्शन करा रहे हैं. आप कोई फंक्शन नहीं करा रहे. ये शरीर जानता है, इसको ऑर्डर दे दीजिए, इट विल डू इट्स ओन वर्क. दैट्स इट. इसको ऑर्डर दे दीजिए, इट विल डू इट्स ओन वर्क.
एक चीज सभी को करना चाहिए, प्लीज डू नॉट ईट व्हेन यू आर नॉट हंग्री। ये तो सबको गांठ बांध लो, भूख ना लगे तो छोड़ दीजिए ना। कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है वेयर यू विल नॉट गेट फूड वेन एवर यू वॉन्ट। 1 घंटे बाद भी आप चाहें तो कुछ भी खा सकते हैं। और ज्यादा ही रिस्क लग रहा है तो फोन तैयार करके रखो, स्विगी जोमेटो। अब एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा, अगर इसको समझ गए तो भाई जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, when you are not doing anything inside your body and outside your body, बाहर कुछ कर रहे हैं, हवा चला रहे हो आप, हवा बहा रहे हो, सूरज को उगाते हैं, सुबह और शाम को ढालते हैं, नहीं, बारिश करवाते हो, ये अर्थ को बैलेंस बना के रखा है आपने, घुमाने का बैलेंस है, कितनी तेज घूमना चाहिए ये आप डिसाइड करते हैं, ये सोलर सिस्टम का बैलेंस बनाया। क्या करते हैं हम और बाहर? कुछ भी नहीं करते। When you are not doing anything inside, you are not doing anything outside. What are you worried about? इस क्रिएशन ने आपको बिना कुछ किए एक मौका दे दिया जीवन जीने का, उस पर भरोसा भी नहीं करना। सो जिस दिन आप एक्चुअली भरोसा करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, मगर हमने ऑप्शन बना लिया, ना भरोसा करने का ऑप्शन बना लिया, विच इज अननेचुरल। जो प्राकृतिक रूप से सटीक है उसको हम धर्म बोलते हैं। विधर्मी हो गए हम तो छोड़ दीजिए ना फिर चिंता, और एक्सेप्ट कर लीजिए अपने जीवन को द वे इट इज। नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड तो आप जानते नहीं हो ये कैसा इंसान है, ये राक्षसों का भी राक्षस है। कोई बात नहीं, ये तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। मेरी वाइफ ने तो पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, चैन मेरा खत्म कर रखा है। अरे बाबा, वो तो शादी से पहले सोचना चाहिए था। फंडामेंटली, मूलभूत रूप से इंसान तो कोई भी गलत नहीं होता। We create a personality, we create our likings and dislikings, and that is how we fall into some kind of a wrong situation. अगर आप हर चीज को ही एक्सेप्ट कर लें, नहीं मैं जो चाहता हूं वही होना चाहिए तभी मैं खुश होऊंगा, तो शायद आप जीवन में कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। अब इसको उल्टा कर देते हैं, जो होता है वही मैं चाहता हूं, तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। जो भी हो रहा है वही मेरी चाहत बन जाए तो क्या मैं कभी दुखी हो पाऊंगा? वॉट एवर आई वॉन्ट, इफ इट हैपन्स देन ओनली आई कैन बिकम हैप्पी। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी failure kind of thing that you are creating. But if whatever happens, I accept it as my liking, then where will I get the chance to be unhappy? जो कुछ हो रहा है वही मेरी चाहत बन जाए तो मैं शायद दुखी ही नहीं हो सकता कभी। थोड़ा सा मौका मिला है, द फैमिली, इट्स नॉट परमानेंट। आपको मालूम है आपके परिवार परमानेंट नहीं है।
आपके हस्बैंड आपकी वाइफ परमानेंट नहीं है, इट्स अ लिटिल टाइम, छोटा सा मौका मिला है साथ में जीवन को अनुभव करने का, टू एक्सपीरियंस लाइफ, इट्स अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी। और भी एक बात बताता हूं, इफ यू आर टुगेदर हस्बैंड वाइफ एंड किड्स, husband has done something wrong or the wife has done something wrong, हस्बैंड ने कुछ गलती कर दी, वाइफ ने कुछ गलती कर दी, गलती इंसान हमेशा कंपल्जन में आके करता है। कोई एक सिगरेट पीता है ना, वो भी आप देखोगे कि कहीं अंदर से उसके कंपल्जन है तभी वो सिगरेट पी रहा है। इसे कर्म दोष कहते हैं। तो क्या हस्बैंड वाइफ इतने साथी भी नहीं हो सकते कि एक दूसरे का कर्म दोष निवारण के लिए भी तैयार बैठे? अगर किसी ने कुछ कर्म दोष हो गया, गलती की, कंपल्जन में की ना, तो आपको तो मौका देना चाहिए ना, मेरे साथ में है कोई बात नहीं, कंपल्जन है, कर्म दोष निकला, इसका होना चाहिए ना। यू शुड गिव दैट एनवायरमेंट, दैट इकोसिस्टम, जहां पे किसी का कर्म दोष भी निकले उसके लिए सपोर्टिव बनना चाहिए। फंडामेंटली एवरी ह्यूमन is a good human. The bad thing happens only because of certain compulsion. But if you do not allow that compulsion to happen, how will that person come out of that problem? That is a disease. Na? Compulsion is a disease. Don't you want that your partner comes out of a disease? So you should give that space. आपको वो जगह, स्थान, वो क्षेत्र देना चाहिए अपने पार्टनर को जहां पे वो अपने कर्म दोष की बीमारी से भी निकल सके। तभी आपका संबंध सही संबंध है। अदरवाइज मुझे जो चाहिए वही ये करे, दिस इज अ टॉर्चर। ये टॉर्चर है। तो टॉर्चर चाहिए आपको क्या? आदमी खास करके ये काम बहुत ज्यादा करते हैं, और उसका उल्टा करती है। बिल्कुल दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं। आदमी कहेगा मैं जो चाहता हूं वो ये करे, और औरत कहती है अच्छा ये चाहता है तो मुझे ये करना चाहिए। दोनों ही टॉर्चर कर रहे हैं एक दूसरे को। दिस इज नॉट रिलेशनशिप, दिस इज अ डिजीज। एक बीमारी है, इनसे हटिए। कल आप सांस ले रहे होंगे, नहीं ले रहे होंगे, इफ विल बी अलाइव टुमारो, वी डोंट नो, हम नहीं जानते। संधि विच्छेद तो होना ही होना है, ये गारंटीड है। कितना ही कोशिश कर लो हमेशा जिंदा रहने की, हमेशा जिंदा रहना भी एक बीमारी है। और वेस्ट के लोगों को ज्यादा बीमारी है, वो सबसे बड़ी बीमारी है, को हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको गलती से पढ़ा दिया गया है कि एक ही लाइफ है, तो सारी लाइफ में सब कुछ वही खा जाना चाहते हैं, पी जाना चाहते हैं। ये बीमारी है। So whatever time is left, try to experience life in the best possible manner. अपने पार्टनर को वो जगह देते हुए उसको टॉर्चर ना करें, अपने को भी टॉर्चर ना होने दें, और दोनों ऐसे रहें जैसे कि एक मौका है, छोटा सा मौका, तो एक्सपीरियंस लाइफ इन इट्स बेस्ट पॉसिबल मैनर। जीवन को इसकी पराकाष्ठा में उसको एक्सपीरियंस करना, और फिर उस एक्सपीरियंस से मुक्त हो जाना। देखो कोई भी काम हम करते हैं ना तो उससे मुक्ति के लिए ही करते हैं। मीठा खाने का खूब मन हो ना, तो एक दिन बैठ के दिन रात मीठा खा लो, मन परेशान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। नहीं, पिज्जा खाने का मन है, सुबह दोपहर शाम पिज्जा खाओ 2-3 दिन तक, फिर देखो मुक्ति हो जाएगी।
तो मुक्ति हमेशा एक्सपीरियंस करने से होती है, एक्सपीरियंस से भागने से नहीं होता, सही गलत मन में सोचने से नहीं होता। बहुत सारी प्रॉब्लम जो आपने यहां पे बताई हैं वो एक्चुअली मैं इसके बारे में बोल चुका हूं, और अगर देखेंगे तो जो मैंने बोला उसी में मैं आपको समझा सकता हूं। नमनेस इन माई फिंगर, इसका मतलब वहां पे इंपैक्ट हुआ ना, तो आपको सेंसेशंस आ रहे हैं, है ना। तो आराम से कीजिए, और अगर आप ठीक से रिदमिक वे में करेंगे ना, लय में कुछ भी करेंगे, ये कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। और एक और बात बताऊं, उम्र के साथ ना नर्व का एनीवे स्ट्रेंथ कमजोर होता है, बट बहुत प्रॉब्लम नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। जैसे कि कई बार होगा कि सुबह उठे, थोड़ा सा अकड़न है शरीर में, थोड़ा चल लेंगे, ठीक हो जाएगा। सो उम्र के साथ अगर इफ देर इज some problem coming, don't take it as a disease, because you cannot become 16 at 70. 70 साल में 16 के आप नहीं बन सकते, एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। लेकिन आपके शरीर में स्ट्रेंथ है तो एकदम से निकल सकते हैं उससे। स्लीप डिस्टर्बेंस का मतलब है आपने अपने आप को बहुत पकड़ रखा, तभी छोड़ नहीं रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे अपने आप को। डर है, बहुत डर है ना। शरीर अगर डिसऑर्डर में है जैसे बताया, तो डर होगा ना, एंजाइटी, फियर, और उचाटपना होगा, रिदमिक नहीं होगा, खुश नहीं हो पाएंगे, सोचते ही रहेंगे हमेशा, छोड़ नहीं पाएंगे अपने आप। ऐसा लगेगा कि छोड़ेंगे तो मर जाएंगे। नहीं नहीं, स्लीप इज ऑल्सो डेथ, बट यू हैव टू स्लीप टू गेट अप। डेथ चाहिए जन्म के लिए। आप जन्म बंद करना चाहते हैं तो डेथ बंद कर दीजिए। यानी आप दिन में अगर काम नहीं करना चाहते तो सोना बंद कर दीजिए। तो छोटी मृत्यु तो चाहिए, मृत्यु की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमको, है ना। क्योंकि एक बार तो बड़ी आएगी, तो छोटे छोटे करके रोज रात को एक मृत्यु होती है, तो उसको आत्मसात करें, गले लगाएं। ठीक है, जो हो गया हो गया। अगर आप थोड़ा रिदमिक, आपको हमने एक प्रैक्टिस दिया, रेशियो ब्रीदिंग, थोड़ा करेंगे, उसको करेंगे, जितना स्लो एंड लंबा करेंगे उतनी जल्दी नींद आ जाएगी। जो रिदमिक 6:12, 8:16, 4:8, कोई नंबर दिया होगा आपको। सो वी हैव गिवन यू अ नंबर, बट यू हैव टू डू इट स्लो एंड लॉन्ग। नंबर धीरे धीरे काउंट करें, धीरे और लंबा करेंगे, शाम को नींद आ जाएगी। जिनको सुबह दिया वो सुबह ही करेंगे। Diabetes, sugar level is not diabetes. So if you are taking tablets to decrease your sugar level, you are harming your body. आपका शुगर ब्लड में जो है उसको डिस्प्लेस करके क्या फायदा होगा? घर का कचरा सोफे के नीचे डाल के आप मतलब क्या आपको भला होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। So you don't want sugar glucose level in your blood, but you don't have a method to check the glucose level in your liver, kidney, heart and other system. तो आपको चाहिए ब्लड से निकल जाए साहब, मैं खुश हो जाऊंगा। तो आप जो दवाई खा रहे हैं वो ब्लड से किडनी में ले जाएगा, हार्ट में ले जाएगा, लिवर में ले जाएगा, नर्वस सिस्टम में ले जाएगा, मसल्स में ले जाएगा, बोन में ले जाएगा, वो सब खराब होंगे। आंखों में ले जाएगा, वो खराब होंगे। तो दवाई खा के शुगर लेवल कम कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने ऑर्गन्स प्यारे नहीं है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करता है ना शरीर, तो उसको और सपोर्ट कर दो, थोड़ा आयुर्वेदिक डायूरेटिक ले लो, उससे क्या होगा, ब्लड का शुगर निकल जाएगा। मगर एक और बात बताऊं, डाइट रिस्ट्रिक्शन करोगे तो अपने आप को खत्म कर देंगे। दिस इज नॉट हाउ यू शुड ट्रीट डायबिटीज, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट हैव डायबिटीज। इंडिया में ऑलमोस्ट 80% लोगों को डायबिटीज नहीं है, जिनको बोला गया है कि डायबिटीज है। 70% टाइम इन 24 आवर द ब्लड शुगर कैन रिमेन लेस देन 180। दोबारा से बोल रहा हूं, समझो। 70% टाइम इन 24 आवर
24 घंटे में 70% टाइम ब्लड शुगर अगर 180 से नीचे है, आपको डायबिटीज नहीं है। 30% टाइम इट कैन गो टू वॉट एवर हाइट, 200, 300, 400, 500 कुछ भी जाए, चलेगा। आप बताइए मुझे, आप डायबिटीज है नहीं मगर आपको ऑर्गन नहीं चाहिए अपने, तो दवाई 6 टैबलेट क्या, मैं तो कहूं 8 टैबलेट खाओ, जल्दी होगा काम। भाई आजकल हमको सब कुछ जल्दी चाहिए ना, तो जल्दी जल्दी करके आपका वो कट ऑफ लाइन, वो जो डेडलाइन है वो क्या है, मृत्यु ही है ना। आप जल्दी जल्दी जी के क्या करोगे, मृत्यु तक जाओगे ना। काउंटर में आगे पहुंचना है, आप ऐसे सोच रहे हो ना, मुझे काउंटर में आगे पहुंचना है, तो और भी अच्छे तरीके हैं काउंटर में आगे पहुंचने के, नहीं? डेथ के तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है गोलियां खाना, तो यू कैन इंक्रीज द डोजेज इफ यू वांट टू गो बिकम फर्स्ट इन द काउंटर। वीकनेस बिफोर 15 days ऑफ माई मंथली पीरियड, नी पेन, मसल पेन, ब्लड आपका कम बनता है बॉडी में। कुंभक करेंगे धीरे धीरे करके, वो ब्लड अच्छा बनना शुरू हो जाएगा, तो वीकनेस चली जाएगी। हाँ, फील्स गिडी एंड नॉसिएटेड व्हेन यू आर डूइंग क्रिया, प्लीज डू इट जेंटली। अभी क्या बताया कैसे करना है क्रिया, आपको कुंभक कैसे करना है, कुंभक बोले इसको, क्रिया नहीं बोलेंगे। कुंभक कैसे करना है, दैव कुंभक करना है, असुर कुंभक, आसुरी कुंभक नहीं करना। तो अगर आपको कोई नंबर दिया और उस नंबर में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू इट। इफ योर बॉडी इज वीक, प्लीज डू द होल एज पर योर बॉडी इज कंफर्ट। जितना आपको आराम रहे, जितने में आप खुश रह सकें, उतना ही करें। धीरे धीरे करके आफ्टर 3 months 6 months यू कैन गो टू द प्रिस्क्राइब्ड नंबर और रेशियो, है ना। 6 महीने तक आप नंबर फॉलो करना कोई जरूरी नहीं। यू इंक्रीज योर कैपेसिटी स्लोली स्लोली, उतना ही कुंभक करना है जिसमें खुश रह सकें। दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब है ज्यादा जोर लगा रहे हो। हाँ, एनी काइंड ऑफ अ गैप कैन बी रिवर्स्ड, द प्रॉब्लम विल नॉट परसिस्ट इवन इफ देर इज अ गैप। आई हैव गैप्स, मतलब मेरी हड्डियां सारी टूटी हुई हैं शरीर की। आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स में था तो पांव के ये वो सब हड्डियां टूटी थी, बट आई डोंट गेट एनी प्रॉब्लम। तो आप सोचते हैं कि यहां गैप हो गया या हड्डी टूट गया या प्रॉब्लम होगी, नहीं 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 नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता इफ देर इज नो इन्फ्लेमेशन। अब बॉडी में पूरा इन्फ्लेमेशन है। अच्छा, एक और है, लोअर बैक मसल्स आर पुल्ड, प्लीज डू नॉट मूव इट for some time. Do not do any kind of stretch. It will become fine. Then you start. कभी नर्व पुल या मसल पुल हो गया है ना, कुछ मूवमेंट नहीं करना। ज्यादा झटका देने की कोशिश करोगे, पेन बढ़ता जाएगा, स्पेशली इन द नर्व पुल। देर इज ऑलवेज अ मसल ब्रेक व्हेन यू स्ट्रेच। स्ट्रेच करते हैं तो मसल ब्रेक होता, उसकी वजह से पेन आता है, लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा, दर्द आएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना उसको, लेट द थिंग हील। इफ यू डू नॉट मूव इट, इट विल हील अप, और फिर उसके बाद में कीजिए। मगर हमेशा अपने बॉडी को ठंडा करने की कोशिश कीजिए आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कुंभक। इफ देर इज टू मच इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, अल्सर्स आ रहे हैं, इसका मतलब गर्मी बढ़ गई। अभी गर्मी भी नहीं झेल सकते आप, तो क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। फिर द कूलिंग डाउन प्रोसेस हैज बीन शेयर्ड विथ all the mentors, you can ask them। हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि गर्मी बढ़ रही है, पेन बढ़ गया, तो डू द कूलिंग डाउन, ठंडा करने का प्रयास करेंगे। और नेचुरल में भी अगर आप देखेंगे कि अपने बॉडी को एल्कलाइन थोड़ा सा बना ले, एसिडिक एल्कलाइन, दो चीज होती है, एल्कलाइन थोड़ा सा बना लेंगे ना। हाउ टू मेक इट एल्कलाइन, एनी काइंड ऑफ फ्रूट विल मेक इट एल्कलाइन। फ्रूट जूसेस आपके बॉडी को एल्कलाइन बनाते हैं। तो पानी को भी आजकल बहुत आ रहा है, आप ये सब ना यूट्यूब में देख लिया करो, लोग 1000 तरीके से बोलते हैं एल्कलाइन बनाओ, मगर इलेक्ट्रिसिटी पास करके पानी को एल्कलाइन नहीं बनाना। तो देयर इज अ मशीन टू क्रिएट एल्कलाइन वाटर, ना दैट इज नॉट गुड।
नेचुरल तरीके से अल्कलाइन बना लें, ठंडा करें अपने शरीर को, शीतकारी, विपरीत करनी, ये सब हमने बताया हुआ है अपने मेंटर को, आप लोग उनसे पूछ लेंगे। अच्छा, if somebody has fever, headache, please do your kriyas gently and you can cool down your body, because when there is weakness in the body and you're doing kumbhak, the body will generate a lot of heat, but that heat will also heal you, but it can create more pain. So try to cool down your body. अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आप सभी को बोल रहा हूं, एक टैबलेट आयुर्वेदिक गोली तो हर एक के घर में होना चाहिए। दैट इज महासुदर्शन घनवटी। क्या? महासुदर्शन घनवटी। 2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी ले सकते हैं। वेरी सेफ, यू कैन गिव इट टू किड्स। बच्चों को बुखार हुआ है, आपको डर लग रहा है, तो वो ये दे दो पैरासिटामोल की जगह। But you can take it on and off whenever you feel more inflammation and heat in the body. सुबह, दोपहर, शाम 2-2 गोली ले लो। इसको 5 बार भी ले सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। इसको बहुत लंबे समय तक नहीं लेना। हाँ, तो एक बारी में जैसे 2-3 दिन ले लिया, दैट्स इट। उससे ज्यादा बीच बीच में ले सकते हैं, क्योंकि विदाउट हीट योर बॉडी विल नॉट रिकवर इटसेल्फ। आजकल बहुत लोग एनीमा करवा लेते हैं, है ना, कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई ना कोई कुछ खा रहे हैं। अगर आप ज्यादा दस्त करा लोगे तो आपका एनर्जी सिस्टम बहुत बिगड़ जाता है, वीक हो जाता है। एनीमा ज्यादा करोगे तो एनर्जी सिस्टम वीक हो जाता है। तो कभी कभी तो कर सकते हैं, बट इफ यू आर डूइंग कुंभक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, you'll see you'll not need those things, है ना। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए हमने आपको बताया हुआ है, हरित की ले लिया करें पानी में भिगो के, बहुत सेफ चीज है। मगर बार 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 करने पे ना हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग एन ऑर्डर एंड देन वी आर डिस्टर्बिंग दैट ऑर्डर। स्पेशली एनीमा शुड नॉट बी डन एवरी डे, हर एक दिन नहीं करना। हफ्ते में एक बार शुरुआत में करो, और उसके बाद में 15 दिन में, उसके बाद में महीने में, उसके बाद में छोड़ दीजिए। तो महासुदर्शन घनवटी सबसे आसान तरीका अपने बॉडी को ठंडा करना। इफ यू आर फीलिंग बर्निंग सेंसेशन, आंख बंद करते हैं, जलन हो रहा है, पांव में जलन हो रहा है, हथेलियों में जलन हो, सबसे आसान तरीका क्या? आंख ऐसे भींचो, और अगर जलन हो रहा है तो बॉडी में हीट ज्यादा, टेक महासुदर्शन घनवटी फॉर 2-3 days, you'll see your body will relax। 2 दिन से पेट बहुत भारी लग रहा है, बहुत कारण से पेट भारी हो सकता है, बहुत कारण से पेट भारी हो सकता है। अच्छा, माइक्रोबायोटा ये हमारे बॉडी में आजकल बहुत बिगड़ा हुआ है, तो कोई प्रोबायोटिक जरूर लें। खास करके कंजी वगैरह आजकल मिल जाती हैं, ऑर्गेनिक कंजी घर में बना सकते हैं तो बना लीजिए। फर्मेंटेड चीज लेंगे ना तो माइक्रोबायोटा थोड़ा ठीक हो जाएगा, आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में ठीक हो जाता है। तो इसके कारण होता है, लिवर एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सीजन योर लिवर एडजस्ट इटसेल्फ। तो समटाइम्स देर कैन बी मोर हेवीनेस इन योर एब्डोमेन, ऐसा हो सकता है। नाभि धरण अगर हिल जाएगी तो आपको पेट भारी हो जाएगा। भोजन में कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपका शरीर जो है बहुत एक्सेप्ट नहीं कर पाता उसको, जिसको हम एलर्जिक कहते हैं। मगर जरूरी नहीं कि डिटेक्टेड एलर्जी हो, पता लगा हो कि एलर्जी हो। कभी कभी भोजन में ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसके कारण भी ये हो सकता है, और अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो ये हो सकता है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, आप कॉन्स्टिपेशन रिलीव करो अपना, सबसे पहली चीज। उसके बाद थोड़ा प्रोबायोटिक ले लिया करते हैं। बॉडी को ठंडा करने से लिवर इंप्रूव होता है, ठीक है ना, लेकिन गर्म करने से लिवर काम करता है। अच्छा, दोनों चीजें हैं। गर्म करने से लिवर को शक्ति मिलती है, ठंडा करने से रिलैक्सेशन मिलता है, रिकवरी करता है। ये दोनों ही बैलेंस वे में होने चाहिए, तो फिर आप देखेंगे कि ये ठीक हो जाएगा।
या फिर हमारे देश में तो गैस के लिए बहुत सारी चीजें रखते हैं, अनारदाना, हींगोली, ये सब। हींग बहुत अच्छी चीज है जिससे कि असर होता है। कई लोग हैं जो पित्त प्रकृति के हैं, उनको अनारदाना बहुत सूट करेगा। तो ये सब चीज करेंगे ना। और तेल का ध्यान रखें, तेल हमेशा कच्ची घानी, नॉन रिफाइंड, कोलू ब्रांड, कोलू वाला होना चाहिए। हाँ, तो कभी भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें। अगर बहुत सीवियर इंफेक्शन हो जाता है तो आप कोई एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अब देखिए, मैंने कभी आपको दवाइयों के लिए मना नहीं किया, लेकिन आपके दिमाग में आया होगा कि मैंने मना कर दिया। मैंने क्या कहा है कि अपने को दवाई लेके ठीक करना कोई अच्छा तरीका नहीं, लेकिन जरूरत पड़े तो शॉर्ट टर्म दवाई लीजिए। तो एंटीबायोटिक शॉर्ट टर्म होता है, मगर एंटीबायोटिक आपके पूरे सिस्टम को बिगाड़ देगा। तो हमें क्या करना चाहिए था कि नेचुरल एंटीबायोटिक के ऊपर खूब रिसर्च करना चाहिए था, जो हमने किया नहीं। अब कर रहे हैं बहुत लोग नेचुरल एंटीबायोटिक का। तो इन्फेक्शन हो तो नेचुरल एंटीबायोटिक अगर मिले तो ले, नहीं तो कोई भी एंटीबायोटिक ले, मगर उसका पीरियड, डोसेज कंट्रोल करके रखें। 5 से 7 दिन ही लिया जाता है, उससे ज्यादा ना लें। बैक पेन, हेडेक, देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं फिर से दिमाग खोल के सुनो। बहुत परेशानी आ जाए उस समय जो चीज अवेलेबल हो ठीक करने के लिए कर दीजिए, मगर आपको एक अपने अंदर समझ भी रखनी है कि आगे चल के दिस इज नॉट हाउ आई शुड बी हैंडलिंग माई प्रॉब्लम्स। तो यू क्रिएट दैट रिकवरी स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। बहुत तकलीफ है उस समय, आराम करो भाई, बिना आराम के तो आप कुंभक भी नहीं कर पाओगे। तो गेट योरसेल्फ इन अ स्टेट वेयर यू कैन डू कुंभक एंड देन स्लोली स्टेडीली सी कि ये ब्रेन स्ट्रोक जिनको भी हुआ है, प्लीज डू कुंभक। दिस इज रामबाण फॉर यू, बट यू हैव टू डू इट वेरी जेंटली एंड बीइंग वेरी स्टेबल। स्थिर रह के कीजिए, बीच में गैप खूब सारा दें। एक बार किया फिर गैप दो, फिर दूसरा राउंड किया फिर गैप दो, ऐसे गैप दे के करो, थोड़ा टाइम लगा के करो। क्योंकि दवाई जो आपको दे रहे होंगे ना, उससे आपकी स्ट्रेंथ वापस नहीं आ सकती। सारे ब्लड थिनर आपको कमजोर ही करेगा। जिनका भी ब्रेन सर्जरी हो उनको तो ब्लड थिनर पूरा डालते ही हैं, स्टैटिन पे डाल देंगे, ब्लड थिनर्स पे डाल देंगे, तो वो बहुत नुकसानदेह है बॉडी के लिए। देखो, ज्यादा टेंशन, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फाइब्रोमाइल्जिया हुआ, हाइड्रेट करो बॉडी को। पानी बॉडी में जब तक रहेगा फाइब्रोमाइल्जिया नहीं हो सकता। कुंभक करें, हाइड्रेट करके रखें, पानी खूब। पानी के साथ में आप चाहें तो हल्का कच्चा दूध होता है ना, A2 दूध, थोड़ा वो डाल सकते हैं पानी के साथ में। अगर कोई कफ प्रकृति का है तो शहद नींबू इस्तेमाल कर ले, या कोई भी अरिष्ट भी आप यूज कर सकते हैं। एक षडांग पानी आता है, षडांग कषायम, षडांग कषायम, पानी में, खूब सारे पानी में थोड़ा थोड़ा डाल के अगर पिएंगे तो फाइब्रोमाइल्जिया में बहुत हेल्प मिलेगा। क्या है? षडांग कषायम या पानीय। षडांग पानीय बोलते हैं, ये षडांग कषायम बोलते हैं। तो उसको थोड़ा थोड़ा पानी में डालो और पियो, मगर पानी थोड़ा थोड़ा करके नहीं पीना पूरे दिन में। पानी कैसे पीना है? प्यास लगे ना, 1 गिलास पी सकते हैं, 2 गिलास पी लो, लेकिन थोड़ी प्यास लगे तो पीना। कुंभक में वैसे प्यास आपको खूब लगेगी। बिना प्यास के थोड़ी थोड़ी देर में सिप सिप करके पानी नहीं पीना, ब्रेन में सूजन आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सो प्यास लगे 1 गिलास पी सकते हैं, 2 गिलास पी लो। एसिडिटी तब होती है, 2 कारण से होती है। एक तो आपका भोजन नीचे की तरफ नहीं जा रहा, तब एसिडिटी होगी। दूसरा है एसिड बढ़ जाएगा, पित्त प्रकृति में एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी होने पे कच्चा दूध, कच्चा ठंडा दूध बहुत रामबाण है, एकदम से काम करता है। मगर आपको भोजन का ध्यान रखना पड़ेगा, बॉडी को ठंडा करना पड़ेगा। दोबारा से मैंने बता दिया, महासुदर्शन घनवटी, ठीक है। अपने बॉडी को ठंडा करें। अपसाइड डाउन अगर लाई डाउन करेंगे ना, सिर नीचे पांव ऊपर, विपरीत करनी, आधा घंटा, तो एसिडिटी में बहुत आराम मिल जाएगा। और उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है?
कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। थोड़ा लूज मोशन करा दोगे तो वैसे ही एसिडिटी ठीक हो जाती है। ये रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे जिनको नहीं सुनने में आ रहा। लिगामेंट टेयर, ये बता दी, लिगामेंट टेयर आराम से ठीक हो जाता है। लिगामेंट पे ज्यादा जोर नहीं डालना और अपना रिकवरी, मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे तो वो रीजनरेट होके ठीक हो जाएगा। एलर्जी और कोल्ड जिनको ज्यादा रहता है कुंभक से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर 140 145 हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना सही होता है? 100 प्लस योर एज प्लस 10, या ऐसे मान लो 110 प्लस योर एज। अगर आप 40 साल के हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 110 प्लस 40 कितना हुआ? 150 नॉर्मल है। 40 साल के इंसान के लिए 150 नॉर्मल है, कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए आपको। 50 साल के इंसान के लिए 160। तो ये आपका नॉर्मल है। आप अगर दवाई खा रहे हो तो अपना नुकसान कर। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और इतनी जल्दी जल्दी आप ठीक होने की कोशिश करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आम खाना है, आम का बीज लगाया और आपको एक हफ्ते में आम खाना है, खा पाएंगे? 5 साल वेट करना पड़ता है। तो प्लीज डू योर प्रैक्टिस एंड देन हाउ आई हैव टोल्ड यू, अगर आप सीक्वेंस कर रहे हैं अंगन्यासा, मर्म विन्यासा और कुंभक थेरेपी कर रहे हैं, यू कैन चेंज द सीक्वेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। इज इट सेफ टू डू कुंजल? नो, नॉट एवरी डे, नॉट एवरी डे। यू हैव टू गिव अ गैप। कुंजल एवरी डे नहीं करना, आप एक शेड्यूल बना लीजिए। You do it for 2-3 days and see your acidity is okay. Then every month 2-3 days and slowly you go towards increasing it. देखिए, आप flush out body को जब भी करते हैं ना, whatever you create it just flushes out. Whatever the energy impression that you create, जैसे रेत पे अगर आप कुछ बना रहे हैं और समुद्र आके उसको बहा ले जाता है, तो flushing the body, internal body is not good for long period of time. Only for a short period of time you do that, and when you are doing kumbhak, you ensure that you flush your body in long periods. जैसे कि 2-3 साल अगर आप कुंभक कर लिया ना तो साल में एक बार फ्लश कर सकते हैं, 6 महीने में एक बार, दैट विल बी ओके। बट अभी आप ज्यादा कर सकते हैं, बट इतना भी नहीं कि एवरी डे यू डू इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। टेनाइटिस के लिए आपको हमने प्रोसेस दिया होगा, आप करेंगे ना टेनाइटिस में बहुत फर्क पड़ जाएगा। बट फॉर सम पीपल इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर टाइम। कुछ लोगों का तो इमीडिएटली टेनाइटिस चला जाता है। पैनिक अटैक, ये सब मैं बता रहा हूं, डरा हुआ है आपका शरीर क्योंकि टॉर्चरस बॉडी है। हाँ, आपको अगर कोई क्वेश्चन है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए किसी चीज का, तो प्लीज मैसेज। ये देखो, ये सब क्वेश्चन यहां के लिए नहीं है। आपको 24 आवर व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहां पे कभी भी पूछे ना। त्रिफला कैन बी taken and ghee can be taken lifelong. Triphala has to be given a little break after 40 days, 1 week break, and then you can again start 40 days, 1 week break, and this is how you can actually take it throughout your life. टिंगलिंग सेंसेशन नर्व डीजनरेशन है। अल्सर अभी मैंने बात कर दिया, टेनाइटिस के लिए भी मैंने बता दिया है। सीक्वेंस यू मस्ट आस्क इन द ग्रुप। पाइल्स प्रॉब्लम, देखिए ये सब जो है, आप थोड़ा सा अपने पेट को साफ करने के लिए, लिवर सिरोसिस, अगेन एज आई सेड, इफ यू कूल डाउन योर बॉडी, liver will recover, but then you have to create strength also. कुंभक and cool down you do parallelly, साथ में करें।
कूल डाउन का प्रोसेस पूछ लें। लिवर का कोई आयुर्वेदिक में आयुर्वेद में लिवर के लिए बहुत अच्छी चीजें होती है ना। तो आयुर्वेद में इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ वैद्य। वो आपसे काफी देर बात करके सारी चीजें पूछ के फिर बताते हैं। अदरवाइज कुमारी आसव कहते हैं। कुमारी का मतलब होता है एलोवेरा, है ना। एलोवेरा का एक आसव बनता है। इफ यू टेक दैट आसव एम्प्टी स्टमक 3 tablespoon एम्प्टी स्टमक विथ हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर 21 days, 3 हफ्ते का एक कोर्स कर लेंगे। सभी कर सकते हैं, ये तो ऐसी चीजें सभी कर सकते हैं। इट विल सपोर्ट योर लिवर। बट इफ देर इज लिवर सिरोसिस, यानी कि लिवर का जो टिश्यूज है ना वो स्कार्ड हो गए हैं, तो ऐसे में थोड़ा और सपोर्ट चाहिए। देर आर रस औषधियां होती हैं जो कि बहुत हेल्प करती हैं। सो यू कैन कंसल्ट वैद्य। हमारे भी वैद्य हैं, उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। बैक आफ्टर डूइंग कुंभक, यस, गर्मी से हो सकता है किसी को बैक पेन ज्यादा लग रहा हो, अगेन ठंडा करेंगे तो वो, और प्रॉपर रेस्ट कीजिए क्योंकि कमजोरी है बॉडी में, कमजोरी के कारण बैक पेन ज्यादा आता है। दो विपरीत करनी, जो ना पांव ऊपर सिर नीचे करेंगे तो बैक पेन धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। हील्स में पेन होता है, वात अटका हुआ है हील्स में, वो कुंभक करते रहो, फिर थोड़ा टाइम लेगा। फंगल इन्फेक्शन, फंगस कहां पे होता है? वेयर डज फंगस ग्रो? इन अ मॉइस्ट, है ना, एक मॉइस्ट जगह पे जहां पे कि सूरज की गर्मी नहीं पड़ती, वहां पे ही होता है ना। जो मशरूम ग्रो करते हैं कहां ग्रो करते हैं? यानी बॉडी में हीट कम है। तो बॉडी में हीट कम है, बॉडी में हीट कैसे बढ़ेगा? कुंभक, फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा कुछ समय के बाद में, आप देखेंगे इफ यू आर डूइंग कुंभक। राइट, बहुत टाइम हो गया, सो विल एंड हेयर। Every month we do, you can all join, all the participant can join every month, and if there question, अगर monthly session हो रहा है, you can put your question to the in the respective group, you can ask the question, और यहाँ पे मैं देखूंगा कोई relevant question है तो उसका हम आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज बड़ी सुंदर सी स्टोरी आपके ही शरीर की, आपके लाइफ की बताई। दोबारा सुनिए उसे और दोबारा समझिए, और अपनी लाइफ को आप एम्पावर कैसे करते हैं उसी का ही सारा मॉडल आपको हम सिखा रहे हैं। बट आपको अब देखना है कैसे आपको वो करना है। नुकसान करके नहीं करना, फायदा करके करना। तो हाउ यू डू कुंभक? यू डू दैव कुंभक, नॉट आसुरी कुंभक। आपके जीवन में बहुत खुशियां हैं, खूब सारा हेल्थ है, जीवन को पूरे तरीके से अनुभव कर पाए और जीवन की पराकाष्ठा तक पहुंच पाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और स्वामी राजविभू की गद्दी से बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू स्वामी जी।